رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ جتنے سرکش شیاطین ہیں، انسانوں کو ورغلانے اور بہکانے گمراہ کرنے کے لیے جو ظالم سرکش شیاطین ہیں، انہیں اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے، اور قید کر دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا نبی نے اعلان کیا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں رمضان کی اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی کا پروانہ انسانوں کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ آپ غور کیجیے، اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں انسانوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے کا اعلان کرے، اور ہم میں وہ محروم انسان، ہم میں وہ بدقسمت انسان ہوگا جو اللہ رب العالمین کے اس پروانے کو قبول نہ کرے، رمضان کی راتوں میں اپنی آزادی جہنم سے نہ کرا لے، ایسا انسان یقینی طور پہ بڑا محروم ہوگا۔ اور اسی رات میں ہمارے نبی کے بیان کے مطابق فرشتہ آتا ہے انسان کے پاس اور اس بات کا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر امسک، اے خیر کو انجام دینے والے تم خیر میں لپک کر خیر میں سبقت لے کر جا اور نیکی کی جانب اپنا قدم تیزی سے بڑھا۔ اور ہر اس انسان کے بارے میں فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کو انجام دینے والے، اے برائی سے قریب ہو جانے والے، اپنے آپ کو برائی سے روک لے۔ یہ عمل رمضان کی تمام راتوں میں اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے انجام دیتے ہیں۔ مسلمانوں، پتہ چلا کہ ہم میں سے ہر انسان کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مہینے کے داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو صالح کر لے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لے، اور اپنے تمام اعمال کو شرک اور اس کے شائبے سے پاک کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے انعامات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیونکہ اگر یہ بات ہماری زندگی میں پیدا نہ ہو تو یقین جانو ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہماری محنت، ہمارا اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا سوائے ہمارے لیے وبال جان ہونے کے اور کچھ فائدہ اس کا ہمیں نہیں مل سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے عبادات کا صحیح مفہوم اور صحیح طریقہ جسے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کرایا، اس عبادت کے طریقے کو صحیح طور پہ کما حق کو ادا کریں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دم بھرنے والے ہو جائیں۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بیان کیا، اور امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک موت سے دوچار نہیں کیا جب تک خیر کے تمام راستوں کو، نیکی کے تمام دروازوں کو، اللہ رب العالمین سے قریب کر دینے والے تمام امور کو نبی کی زبانی اور نبی کے عملی طور پہ بیان کر کے اور اجاگر کر کے دکھا نہیں دیا۔ لہذا معلوم یہ ہوا جو چیز نبی کے زمانے میں موجود تھی اسی چیز کو دین اور ایمان کا نام دیا جائے گا، اور جو چیز بھی نبی کے زمانے میں موجود نہ تھی اسے دین اور ایمان کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے، چاہے اس پر عمل کرنے والے معاشرے کے اکثر لوگ ہوں یا پوری سوسائٹی کے لوگ ہوں یا پورے ملک کے لوگ ہوں۔ بہرصورت اللہ رب العالمین کا عبرت میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا عبرت اور حقیقت کا اعتراف قلت اور کثرت سے نہیں بلکہ حقیقت کا اعتراف حق اور باطل کی تمیز کتاب و سنت کے دلائل سے ہے۔ ہر وہ عمل جو کتاب و سنت میں موجود ہو، ہر وہ عمل جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، وہ عمل عبادت کہلائے گا، لیکن جس عمل پر ہمارے نبی کی دلیل نہ ہو ایسا عمل عبادت اور شریعت کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کسی بھی انسان کو اپنی عبادت انجام دینے سے پہلے سنجیدگی کے ساتھ، علم اور دلیل کے ساتھ علماء کرام کی جانب رجوع کرتے ہوئے، کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہوئے، اور وہ معتبر نسخے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور طریقے کو ہمارے لیے واضح کرتے ہیں ان کی جانب رجوع کرتے ہوئے ہمیں اپنی عبادت کو انجام دینے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر ہمارا عبادت کو انجام دینا، ہمارا تلاوت کرنا، ہمارا روزہ رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے وبال جان ہوگی۔ میں آپ کو اس سلسلے میں ابھی خطبے کے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن تمہیں پڑھا دیں گے، تم قرآن کو پڑھنا جان لو گے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے قرآن کو محفوظ کر کے جمع کر دیں گے، اور اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کے معانی کو، قرآن کے مطالب اور اس کی تفاسیر کو ہم بیان کر کے پھر تمہیں موت سے دوچار کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے
मुकाम पर साफ तौर पर ऐलान करते हुए पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस बात से बाखबर कर दिया कि आगाह हो जाओ, अगर इस रमजान के महीने में जो तिलावत और कुरान का महीना कहलाता है तुमने कुरान के हक को सही तौर पे अदा न किया तो यकीनन ये रसूल क़यामत के रोज हर कुरान की तिलावत करने वाले इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से बद्दुआ करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, रसूल क़यामत के रोज चीख चीख कर ऐलान करते हुए ऐलान करेगा क़यामत के रोज, ऐ मेरे रब, मेरी इस कौम के लोगों ने कुरान को तर्क कर दिया था। मुसलमानों गौर करने का मकाम है, यहाँ आयत करीमा में कौम से मुराद वो कौम नहीं जिसे आप गैर मुस्लिम मानते हैं, बल्कि कौम से मुराद वो कौम है जिस कौम का शुमार मुसलमानों की जमात में होता है। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सारी अहादीस में बयान किया। चूंकि मेरा वक्त बड़ा मुख्तसर है और इस मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने तफसील से इस मौजू की वजाहत कर सकूं ऐसा मुमकिन नहीं है, लिहाजा मैं इशारे में आपसे बात कहना चाहूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सारी अहादीस में एक कौम के बारे में जो कुरान की तिलावत में बेमिसाल होगी, कुरान की तिलावत उनकी आदत और उनकी फितरत बन जाएगी और उन्हें मुआशरे में सोसाइटी में कुर्रा के लक़ब से याद किया जाएगा। लेकिन मामला ये है कि उन लोगों ने कुरान की तिलावत लफ्जी तौर पे तो किया है, जुबानी तौर पे तो किया है, लेकिन उन लोगों ने कुरान के मानी को समझना, कुरान के अहकामात पर अमल करना जैसा कि सहाबे किराम का अमल था। क्योंकि आपको ये बात मालूम होगी अब्दुल्लाह इब्न मसूद और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इन दोनों के शागिर्दों के हवाले से वो लोग कहते हैं कि हम लोग कुरान की तिलावत करने में या कुरान की तालीम सीखने में 10 आयात से आगे नहीं बढ़ते थे जब तक कि हम उन आयात की लफ्जी और ज़ुबानी तिलावत के साथ साथ उनके मानी को, उनके मतालिब को और उनके अहकामात को जानकर उस पर अमल पैरा नहीं हो जाते थे। मुसलमानों, ये सहाबे किराम का तरीका था कुरान करीम की तिलावत के सिलसिले में, चाहे रमजान के महीने में हो या गैर रमजान के महीने में। लिहाजा मुसलमानों, ऐसा ना हो कहीं कि हम कुरान की तिलावत तो करें इस दुनिया में, लेकिन क़यामत के रोज जब इंसान एक एक नेकी का मोहताज होगा, रसूल हमारे खिलाफ सिफारिशी बनते हुए ऐलान करें, ऐ मेरे रब, मेरी इस कौम के लोगों ने कुरान को तर्क किया था। लिहाजा ऐसे लोग जिनके बारे में रसूल क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुज्जत कायम करेगा, उनकी कामयाबी नहीं हो सकती बल्कि वो लोग जहन्नमी बना दिए जाएंगे। मुसलमानों, ऐसे मौके पर हमें गौर करना चाहिए। चूंकि मुझे इशारा किया गया है कि बारिश यहाँ पर इस साल बहुत कम हुई या बारिश कहसाली के दर्जे में आपको दाखिल कर देने वाली हुई, लेकिन इस मौके पर आपको ये बात फरामोश नहीं करना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब इस तरह का माहौल पैदा हुआ कि बारिश के कतरात आसमान से रुक गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान खुतबा एक सहाबी खड़े होते हैं बुखारी की रिवायत के मुताबिक, और वो कहते हैं, ऐ मोहम्मद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश को हमसे रोक लिया, बच्चे बिलक रहे हैं भूखों से और जानवर या हैवानात चरागाह उनके लिए मैसर नहीं है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से बारिश की दुआ कीजिए। बारिश के बारे में कबल इसके कि मैं वो दुआ करूं जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के खुतबे के दौरान किया करते थे, और उस दुआ में हाथ का बुलंद करना मुबालगे के साथ और फिर इमाम के साथ दुआ करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लिहाजा मुसलमानों, हमें कबल इसके कि बारिश रुके उसके असबाब पर गौर करना चाहिए और उसके फवाइद पर नजर डालनी चाहिए। ये बारिश जो आसमान से नाजिल होती है, इसी बारिश के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का फैसला किया, ये बारिश माए मुबारक है, ये मुबारक पानी है। और इसी बारिश के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बयान किया, फिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ और तुम्हारे लिए आज़ाब का सामान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखा है। इसी बारिश के बारे में नबी ने ऐलान किया, मा मनअकुम मिन ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिअ अल-क़त्र मिन अस-समा लौला अल-बहाइम लमा युमतरून, जो कौम भी ज़कात के माल को अदा करने से अपने आप को दूर कर लेगी, जो कौम ज़कात का माल अदा नहीं करेगी, तो ऐसी कौम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश को रोक लेगा। और बारिश के रुक जाने का मतलब आप बखूबी समझते हैं, अगर ये बारिश रुक जाए तो यकीन जानो इंसानी जिंदगी अजीरन बन जाएगी, हैवानात मर जाएंगे, इंसान बिलक बिलक कर भूखे मर जाएंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया
इंसानों के ज़कात का माल रोकने से अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश रोक लेता है। बारिश का रोक लेना चाहे वक्ती हो, ताकि हमारी आजमाइश हो और हमारे इम्तिहान का अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इम्तिहान को अल्लाह रब्बुल आलमीन चैलेंज कर दे, या फिर बारिश बहुत लंबे वक्फे के लिए रोक ली जाए। लेकिन नबी कहते हैं अगर इस रुए ज़मीन पर चौपाए न होते, अगर रुए ज़मीन पर हैवानात न होते, अगर इस रुए ज़मीन पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े न होते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन इंसानों को बारिश से महरूम कर देता और ये बिलक कर भूखों मर जाते। मेरे भाइयों, नबी के ज़माने में जब कहसाली का मौका आया तो ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बुलंद किया और दुआ किया था। आपकी दुआ में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह की सुनन की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का आगाज़ करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इन आयात की तिलावत के बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बारिश की दुआ की। लेकिन मुसलमानों, आज के इस जुमा के खुतबे में हम लोग भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से बारिश की दुआ करेंगे, जिसे इस्तिस्का कहते हैं। इस्तिस्का का मतलब यह हुआ बारिश तलब करने की दुआ, और इस दुआ के सुन्नत के तरीके 2-3 साबित हैं। पहला तरीका, जुमा के खुतबे में इमाम अपने हाथों को बुलंद करे और मुक्तदी भी अपने हाथों को बुलंद करते हुए दुआ करें। और दूसरा तरीका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस पर अमल हुआ, आप आबादी से बाहर निकल कर गए, इंसान आबादी से बाहर निकल कर गए और वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाया और खुतबा दिया, जिस खुतबे में बारिश के फवाइद, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदाब को बयान करते हुए एक लंबी दुआ की गई। सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही खुतबे में दुआ दिया, हम नमाज से फारिग होकर अपने घरों को वापस होने वाले हुए, लेकिन रब्बुल आलमीन ने ऐसी बारिश नाजिल की कि हमारा घरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। मुसलमानों, गौर करना चाहिए, जब इस तरह के चैलेंजेस या इस तरह की परेशानी और मुसीबत हमारे सामने आए, तो हम में से हर इंसान को अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए और अपने करतूतों को अपनी निगाह से देखना चाहिए कि हमने क्या गुनाह, हमने क्या खता की है। हमारी जिंदगी में बेहयाई और बुराइयां कितनी आम हो चुकी हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के हम लोग मुस्तहिक नहीं ठहरे। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मौके पर हमसे बारिश को रोक लेता है। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने की जरूरत है और तौबा की जरूरत है, अपने अमाल के जायजे की जरूरत है, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात के हम मुस्तहिक हो सकें। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बिलादक अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुगीसन मरियम मरियन नाफ़िआ गैर दार्रिन आजिलन गैर आजिल अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना अल-गैथ व ला तजअलना मिनल क़ानितीन अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना अल-गैथ व ला तजअलना मिनल क़ानितीन अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना अल-गैथ व ला तजअलना मिनल क़ानितीन अल्लाहुम्मा सुक़िया रहमतिन ला सुक़िया अज़ाब वला हदमिन वला ग़र्क़िन वला उदाब अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना अल-गैथ व ला तजअलना मिनल क़ानितीन अल्लाहुम्मा इस्क़ि इबादक व बिलादक वाही बिही बलदकल मय्यित अल्लाहुम्मा इस्क़ि बिही इबादक व बिलादक वाही बिही बलदकल मय्यित अल्लाहुम्मा इस्क़ि बिही इबादक व बिलादक वाही बिही बलदकल मय्यित अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुगीसन मरियन नाफ़िआ गैर दार्रिन आजिलन गैर आजिल अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुगीसन मरियन नाफ़िआ गैर दार्रिन आजिलन गैर आजिल। इस्लामी भाइयों, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर गौर करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के आइन मुताबिक बसर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल हों। अल्लाह की मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इस बात की तौफीक दे कि हम लोग नबी की सुन्नत और तरीक़े की मारिफत के बाद उसी के मुताबिक अमल पैरा हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।